Good afternoon to all of you. I welcome you to this lab session on Python programming. In today's session, we'll be discussing about file handling, the binary files, and some problems on file handling. And then we'll also be discussing about a case study based on CSV module. So let's begin today's session. So we'll be discussing the binary files in Python first. Then I'll be discussing a few programs with you, and then we will discuss about your lab part B. That is the outline of the things that I have decided for you today. So we discussed file handling in our lecture yesterday, and we saw that there are open, close, read and write methods. Basically, we dealt with text files yesterday. Now, in today's session, I'll be discussing the binary files with you. See, the working of files in Python is a bit different as compared to the traditional C, C++, and Java files. So you'll feel the difference that how we need to go about it. So if we need to work with binary files in Python, there is an inbuilt module known as pickle. Okay. So we'll be discussing what is pickling, what can pickle be used for, when not to use pickle, what can be pickled, what is pickle versus JSON, what is pickling files, what is unpickling files. Okay. And this would be the first part of our lab session today. So let's see what is pickling. So pickling basically refers to object serialization in Python. So you understand that you will be using data in the form of dictionaries, data frames, or any other data type. You've been using this in Python. Okay. So when working with this, if you want to save them to a file so that you can use them later on, or if you want to send it to somebody. Okay. So if you have data in the shape of dictionaries, data frames, or any other data type, and you want to send it to somebody, okay, then you can take help of this pickle module. Okay, that is what this pickle module is meant for. It serializes objects so that they can be saved to a file and loaded in a program again later on. Okay, and when they are saved to a file, they are saved in a binary form. Okay, so we'll be discussing what is pickling. So I've just listed these topics for you. So what is pickling? It is used for serializing and deserializing Python object structures. It's also known as marshalling or flattening. Okay, so it converts an object in memory to a byte stream. Okay, so what does serialization do? What does pickle module do? It serializes an object in a memory to a byte stream that can be stored on disk or sent over a network. And later on, you can deserialize this back to a Python object. Okay. I won't be going into too much theoretical details about this, but I'll pick up whatever relevant theory we need to discuss about it. Okay. So pickling is different from compression. Okay. Remember, pickling is not compression. It is simply that your object is converted to a byte stream, and then it can be either stored in a file and then sent over a network, and at the destination it can be again deserialized back to Python object. Okay, what can you do with pickle? It is useful for applications where you need some degree of persistency in your data. So obviously, if you need to store your data in a permanent way, persistent way, then you can pick up pickle, right? And your program state data can be saved to disk, so you can continue working on it later on also. Okay, and it can also be used to send data over a TCP or a socket connection, or to store Python objects in a database. Okay, so it is very useful when you're working with machine learning algorithms where you want to save them to be able to make new predictions at a later time. So pickle module is very, very useful while you're working with your machine learning algorithms. That's what you can do with pickle. When not to use pickle, okay, so you can just read it out. Pickle is Python specific, okay, and cross language compatibility is not guaranteed. So you should not be using pickle if you are working with applications which do not exactly belong to Python, right?
Then what can be pickled? Okay, so you can pickle the following data types: booleans, integers, floats, complex numbers, strings, tuples, lists, etc. Right? So all the above can be pickled, but you can also do the same for classes and functions. For example, if they are defined at the top level of a module. Okay, so you can also read what cannot be pickled. You can just read it. Okay. Then how pickle compares with JSON. JSON is another notation in which your data sets are stored. Stands for JavaScript Object Notation. It's a lightweight format for data interchange that is easily readable by humans. So just like your CSV files, you have JSON files also in the shape of data sets. Then let's discuss pickling in Python. Okay, that is, let's work with pickle and see how it can help us to store our data in a persistent way in the shape of a binary file, right? So for this, the first step obviously is to import this pickle module. Okay, so for our discussion, we'll be transferring this dictionary. The dictionary name is dogs underscore dict, and the following values are there in it. Okay, so we'll first pickle it, we'll serialize it so that we can store it in a file and send it to somebody over a network or share with somebody, and then that person can deserialize it and see it. So that's a very safe way of doing things. Just very unlike the text files which are easily visible to all, these files are binary coded. So whenever if you try to open them, also nothing would be visible. Like this data, which is looking like this in front of you, won't be visible if you send it to somebody. If you just pickle it and serialize it. Okay. So these are the things. We'll first take a dictionary, then we'll pick up a file with the name as dogs, and then we'll open that file in WB mode. So I'm trying to convert to store this dictionary in a file, okay, and that is a binary file, so it is WB module. Okay, WB is the mode. Okay, and once the file is open for writing, then you can use the dump method of the pickle module, which takes two arguments: the object you want to pickle and the file to which the object has to be saved. So a dump method has two arguments. The first one is the object that you want to pickle. So in our case, it's a dictionary, and then the file to which the object has to be saved. Okay, fine. So all clear till this point? If there is anything which needs to be discussed, you can raise your hands. So have you understood the basic concept? What is pickling, why it is required, what is serialization, what is deserialization? All right, fine. So let's now just run this code. Okay, let's run this code in Python and see. Yeah, just okay. So let's just write this code in Python. Okay, so I'll open the IDLE for you. So write this code in a file. Let's pick up this dictionary from here. Just copying this code here so that we can see it's working. Won't waste much time on this. So first I've taken a dictionary with the name as dogs underscore dict, and then I've taken a file name as dogs. Then out file, I opened up a file in for creation in a binary mode with the mode as WB. The file object is out file. Then I call this dump method of the pickle module by passing the dictionary that needs to be written and the file to which it needs to be written. And then I close this. That's important because if you don't close it, then the things are not dumped to the file. The connection stays with the Python program. So remember the name of the file is dogs and is stored in the default directory, right? I'll run it.
Okay, first save it. Yeah, we just forgot to import the pickle module, so we can do it here. Okay, and then we can run it. So the program has run. Let's see that whether we have got that file and in what form it is visible to us. Okay, so I'm opening this. This is the file. Let's open it in Notepad. Okay, so see that nothing is visible here. All right, this is a binary file that you just created with your pickle module. So if this is clear, like what we have done, then you can give me a raised hand, all of you, because there's no interaction from your side. Yeah, if this is clear, I'll again bring this program in front of you to see how serialization is done. First, you import the pickle module, then you take up some data items. I've taken a dictionary here with these values, and then you pick up a file name, you open the file name in WB mode, okay? And then you use the dump method of pickle to send this dictionary to your file, okay? And you can see that it is encrypted. Even if you send it over a network, it won't be, somebody won't be able to just look into it. Okay, you can lower your hands now, all of you. Thank you. Then let's discuss the second part now. Let's discuss the second part of this. Okay, that is unpickling. Okay, so to unpickle means that now you want to read from that file with the mode as RB and see what it contains, right? So once again, we will use the uh, load method to get this. Okay, we use the load method. You can see this. This is the method, load method, which just takes the file as the parameter. Whatever file object you are using here to connect to the file, and the mode is RB. Okay, so you can just read from this, and you can store it in some variable, say new underscore dict. Okay, so it will be a dictionary, and then you can make this comparison whether whatever you stored there is the same or not. It should print the same things out here. So let's write this. So let's open that once again. Let's open the same file, say, and then this is our original dictionary. Okay. Now the mode is RB. Okay. And then you can write something like new underscore dict equal to pickle dot load, and then you can write out file here. Okay, and then you can print uh, the dogs dict, and you can also print the new dictionary. Okay, okay, and then you can also see whether they are same. You can check something like this. Okay, let's run this code now. So you can see both the dictionaries are same. The first one is your original. The second one is read from the file that you just created, and both have the same content. So this is deserialization, and for this we use this uh, load method, okay, which takes the file object as the argument. So I think this much is good enough. You can read further into it, like about serialization and deserialization if you wish. But for your course curriculum, this much discussion is good enough on it. If there are any questions, you can of course ask. So I'm waiting for your questions on this. Otherwise, I'll move to some programs in file handling and then the discussion about the lab part B. If there are no questions, you can raise your hands. Yeah, Tamanna wants to ask something. Okay, okay, okay. Wait. Yes, Tamanna.
Sir, in the program that we have written earlier, we were able to see the output that is in readable form. Sir, then why we write in a form of pickle? As I it is, don't, I don't understand your question. You need to spell it again, please. सर जैसे हमने जो पहले प्रोग्राम लिखा था डॉग फाइल वाला, Hmm. सर उसको जब हम रन करते थे, जब हम वो फाइल ओपन करते थे डॉग फाइल, Hmm. कंटेंट था वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते थे कि क्या लिखा Because हुआ it है. is not a text file, na? It's a binary file. The idea behind the binary file is to so that everybody should not be able to read it. Only the person who is intended to see that file उसी को समझ में आए, right? That's why we encode it. That is the serialization in Python, right? ओके सर. Yes, Angad, please ask. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. सर इसकी जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो डॉट पीकेएल होती है ना? See, let's not get into too much discussion. There's no need to give any extension, right? But that's why I told you if you want, I've just picked it up for your course part that you should be aware of this binary files. But if there is any discussion and if you wish to discuss it, maybe in our next lab or theory class, we can discuss it. Okay. Like what? Because I don't think that's important. I told you file handling in Python would be on a different parameter as compared to C, C++, and Java, right? यस सर. Okay. But even if you wish that we should discuss more about it, let it be in the next lab session. You can just come up with some more content on a pickle module, and then we can share it with the class, right? ओके सर. Oh, all right, all right. Okay, so let's move further now. This is about pickle module. Okay, then let's open up the presentation and see what programs we can discuss. Now I need your, yeah, I've written a few problems. You need to discuss them with me. And I'll be asking students to give their inputs regarding it, right? Because we have finished every part of our syllabus uh, after today's discussion. So you should be able to write these programs, right? So let's discuss the first program, that is generate m random numbers. You can take a screenshot of this page, this slide. Generate m random numbers between 1 and 500, write them to a file and display the count of even and odd numbers. Okay? Have you read it, all of you? Okay. Now suggest how to do it. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कैसे करना है, ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या कोड है. Okay, I'm not asking Python code. Raise your hands who can discuss with me how to do it, because this lab session is meant to discuss how to do things, how to do problem solving, not to write programs. I'll ask everybody today. Let it be very clear. Okay, I'll be asking everybody. So you need to raise hands, otherwise I'll ask you. I'll ask each one of you today. I've told you. Only three people have raised hands. We won't go like this. I'll ask on my own then. Yes. Yes. Anshdeep Singh, unmute yourself. Anshdeep, if you don't answer, I'll remove you from this class. अगर मुझे किसी से आंसर नहीं मिलेगा, I'll remove you. You won't be able to join back. Please. Anshdeep, unmute yourself. Yes, Nitika, unmute yourself. Nitika, unmute yourself. Okay, we'll start with Nitika. We'll remove her from the class. Nitika, if you're not responding, I am removing you from this class. Yes, sir. You've taken very long to respond, Nitika.
Okay, I need to remove you also. I removed Anshdeep. I'll remove you also because I don't want unwanted students in my lab. Those who are not interested. Nitika, respond. Yes, sir. Sir, I was not been able to unmute myself. There is some sort of network problem. I think then you should stop attending online classes. If living in a city you have network problems, तो आपको क्लास नहीं लगानी चाहिए. आपने कल की क्लास कितनी ड्यूरेशन की लगाई थी बताइए? What was the duration of your class yesterday that you attended? Yes, Nitika, please respond. I've unmuted all of you. Okay. Now any one of you can unmute yourself and speak. I'll just call your names, right? All of you can unmute yourself if you wish, if you need to speak, right? So let's talk to Abhishek Podar. I'm just noting the people. I'll just mark them absent for today's lab. Two we have already done. Yes, Abhishek. Good afternoon, sir. Good afternoon. How to do this problem, Abhishek? Just give me an idea. No code. सर सबसे पहले हमको पहले रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो सर पहले रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी. तो लाइब्रेरी क्या होती है? तो पढ़ी नहीं हमने कभी. ओह सॉरी, मॉड्यूल सर. अच्छा, मैं तो रैंडम लाइब्रेरी कोई मॉड्यूल. नई चीज तो नहीं पढ़ ली हमने. नो ठीक है. सर रैंडम मॉड्यूल. देन सर फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में. ठीक है. ओके, यू कैन स्टॉप. चरणदीप, यू कैन आंसर. Yes, sir. First of all, we will use the RAN module. Right. Then we will open the file in write mode. Right. And create a file. First of all, name. Mm-hmm. And then store the random numbers that were given in the file. Random numbers are not given in the file. Somebody is calling you, you know. Somebody is calling you, is trying to disturb you. Is that so? Some good friend of yours. That is the idea behind, you know, you people are not serious about attending a class. And once you end this course, there will be difficulty in getting a job first and then retaining it. अगर अभी नहीं ना focus करोगे आप लोग सब, just for one class there is so much chaos, you know. People living in big cities are having network issues. See, for example, Nitika, she's having network issues. That's very strange. Okay, ठीक है, Charandeep, thank you. Let's now talk to Anchal Sharma. 119. Anchal, how can we generate random numbers? Anchal Sharma, you're not able to listen? Hello, sir. Yes. How can we generate random numbers, Anchal? Difficult question. Okay. No, So sir. you, yeah, you're taking too long. I'm just asking you how. I'm not saying the code. Random numbers generate करने के लिए people have told that there is a random module. Now, how can we generate random numbers between 1 and 500? Just give an idea. Which function, Sir, which method rand to use? int use करेंगे Rand int. Okay. उसकी और कितनी या फिर arguments rand range. रैंड रेंज यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए ठीक है, रैंड रेंज यूज कर लेंगे. ओके, मनप्रीत, या प्लीज आंसर. मनप्रीत, नंबर स्टोर कैसे करेंगे फाइल में? जनरेट तो हो जाएंगे, स्टोर कैसे करेंगे? पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे फाइल, फिर m इंपोर्ट करवाएंगे, फिर लूप चलाएंगे. नहीं, वो ठीक है. आई एम नॉट आस्किंग यू द प्रोग्राम. मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो नंबर जनरेट होंगे रैंडम नंबर्स, उसको फाइल में कैसे स्टोर करें?
फॉर एग्जांपल r इक्वल्स टू रैंड int हमने लिया हुआ है 1 to 500। ठीक है, तो आर को स्टोर करना है फाइल में। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रिंग के फॉर्म में सर इसको स्टोर कर देंगे और साथ में स्ट्रिंग, एक बस दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, उसको स्ट्रिंग की शेप में करना पड़ेगा, राइट? यस यस ठीक है। अनीशा आप बोलिए बेटा, हाउ वुड वी यस सर। काउंट द इवन एंड ऑड नंबर्स? सर फाइल को राइट कर दिया, उसके बाद जी, उसके बाद फिर फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग मोड में। परफेक्ट, ठीक है। फिर सर देन वी विल यूज रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन मेथड यूज करेंगे, फाइन फाइन, ओके। तमन्ना, तमन्ना टेल मी वन थिंग, Yes. मनप्रीत सेड कि फाइल को राइट करेंगे इन द शेप ऑफ अ स्ट्रिंग, तो कैसे राइट करेंगे? आप राइट का जरा बताएंगे मेरे को कुछ सिंटेक्स। आप अपनी स्क्रीन शेयर करनी है तो कर लीजिए, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो। सर लैपटॉप पे है कि मोबाइल पे है? नहीं सर, एक्चुअली मोबाइल पर हूँ। ओके, चलिए तो बता दीजिए फिर हाउ टू डू इट। सर स्ट्रिंग मतलब मैं सोच रही थी कि सर जैसे लिस्ट में भी ये किया जा सकता है स्प्लिट यूज करके, बट सर अगर मनप्रीत कह रहे हैं स्ट्रिंग में करना है तो नहीं, सर स्ट्रिंग में ही करेंगे, लिस्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो आप ट्राई करके नेक्स्ट लैब सेशन में हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? आप वो शेयर जरूर कीजिए। यस सर। सर एफ डॉट राइट कर सर फिर ब्रेसेस स्ट्रिंग STRN और जो भी और वेरिएबल का नाम है, ओके ओके। इंदर आप बोलिए, यू आर रेजिंग हैंड्स, यस। सर हम जैसे एफ डॉट राइट करके स्ट्रिंग को एक एक लाइन के अंदर एक एक जैसे जो यस, रैंडम वेरी गुड, वेरिएबल्स आ वेरी गुड। जाएंगे। हाँ, हमें एक एक लाइन में करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई यस वांटेड टू नो। हम उसको एक स्पेस के साथ नहीं करेंगे, उसको एक एक न्यू लाइन में करना पड़ेगा ताकि यस रीडिंग जब करें तो इजी हो जाए। रीड लाइन सर इजीली हो जाएगा, वो ठीक है, सीधा ठीक है, इंट में हम टाइपकास्ट करके और उसका आंसर आ जाएगा ठीक है, हमारे पास। ठीक है। चलिए प्राची आप बताइए बेटा। वंस यू हैव स्पोकन तो अपने आप को म्यूट करते जाइए। यस प्राची, Yes, sir. can you help me to write the program Sir, now, Prachi? sir, import random. That's good, that's what I want. I'll be calling names, so you can just start import random. I would suggest, Prachi, that instead of this, let's use this, it would make our work easier. Okay. Yes, sir. Something like this, so that we don't need to write it again and again. From random import star. चलिए आगे बोलिए. Slow, take your time Sir, to, yeah. F equals to open Good. Pick and up some file names. name चलिए फाइल नेम ले लेते हैं, random.txt. What's the mode? write mode. फाइन, चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पलक बताइए। सर पलक, if you are एक्सक्यूज there, yes. सर एक Inder, you can speak. Palak, you can wait. Yes, Inder. Yes, Inder. सर फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार और इंपोर्ट रैंडम डिफरेंस क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए, कितनी बार हम यूज कर चुके हैं। इंपोर्ट रैंडम मींस कि रैंडम जो मॉड्यूल है उसके सारे सारे मेथड से यूज कर सकते हैं। यस सर, यहाँ भी तो सारे ही यूज कर रहे हैं स्टार नो स्टार नो से। नो, उसमें हमें रैंडम डॉट वो लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है? ओके सर। अभी सीधा नाम लेके यूज कर लेंगे, नहीं तो रैंडम डॉट, अगर रैंड रेंज यूज करें तो रैंडम डॉट रैंड रेंज लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर, क्लियर। चलिए, यस पलक, प्लीज कम ऑन एंड प्लीज आंसर। सर इसके बाद सर फॉर आई इन रेंज में थोड़ा इन रेंज कर लें। चलिए, हाउ मेनी टू जनरेट, आपको क्वेश्चन याद है ना? हाउ मेनी टू जनरेट, एम था, एम नंबर्स जनरेट करने हैं, तो क्या लिखूं फॉर आई इन रेंज? इनपुट या कीप ऑन आंसरिंग, मुझे बताइए, मैं फिर अगर ठीक होगा तो लिखूंगा। एंटर वैल्यू ऑफ एन, एम है ना? एम को इनपुट नहीं करना पड़ेगा,
m पहले पता होगा, equals to int input करेंगे. int input या var input कर लेते हैं, ठीक है, good. Enter value So of we m. can write how many numbers, ठीक है, good. And sir फिर for w in range. Okay, for I in range 1 comma m plus 1 कर लें, Yes sir. ठीक है, thank you पलक. Asha, you can answer now. Hello, sir. Yes, Asha. What to write next? How to generate the random numbers? I'll help you and then you can help me with the next thing. Okay, I can write something like this. I think it was between 1 and 500. So with this you can generate the random number. Okay, fine. Okay, sir. If somebody needs to speak in between, you can raise hands. Don't just unmute yourself. Okay. Tamanna, if you need to speak, you can raise hand. You can raise hand, not unmute yourself directly. Yes. What next? Sir, I guess Write in file, sir. that right line. Yeah. This will generate a random number between 1 and 500. Okay. Yes, sir. And then we will write it into the file random.txt. Okay. So Aftab, you can answer. Asha, you can mute yourself. Aftab, you can answer how to do it. Yes, sir. How to write it in the file. Rand file dot write. Look on the screen and see the variables and answer accordingly, please. I'm taking some time on this program. Sir, rand range dot write. No. You're not looking on screen. Look on screen. Is the screen visible? Is the screen visible? Respond. Yes, sir. F dot. Yes, sir. You're taking so long to. Yeah, that's the right one. F dot. Yeah. Right. Yeah. X. That's it. X. Would we be able to transfer this number into the file with what you have told me? Because we can store a string with this, right? X is an integer. How to convert it? I've written it for you, and plus I can add a new line. So each number is stored in a new line. All right. Thank you, Aftab. Your answer is correct. What next? Somebody can suggest. Tamanna, you can suggest. Yes, Tamanna, you can suggest. Hello, sir. Yes, Tamanna. Sir, Yeah. What to write next? Sir, there may be an error. hello, Yeah. hello, sir. Yeah, Sir, go close. ahead. Close Yes, with sir. this. F dot. Okay, Inder is suggesting there might be some error. Yeah, Inder, please specify. Sir, firstly, while we open a file, write mode should be in string. Okay, that is the error. No, we can rectify that. All right. Sir, Chaliye. and Anything else? f dot write. Sir, string में एक bracket extra आ गई. ज़्यादा आ गई है. चलो अब ठीक है. 1 2 3 4. चलो. Angad, you can also unmute. आप भी यही कहना चाहते थे? Angad, you can speak. Yes, sir. मैंने Now this is a lab session. We need to. This is not a class. We need to discuss a lot. Okay. Yes, sir. Not to. I am not teaching anything right now. So will this create the file random.txt? Do all of you agree with this? Okay. Let's run it. Let's run and see. So I've stored it in the file. And so how many numbers? Let's take just for checking 5 numbers. So it has run. Okay. Let's now go and see which file random.txt in our Python 3.9 folder, right? Okay. Let's go there. Can you see random.txt? Yes, Can sir. you see the 5 random numbers generated? Okay. Can you see the 5 numbers? Random numbers have been generated. Okay, let's run the program again so that we are sure that the numbers are generated randomly. Okay,
So let's generate 5 numbers again, and let's go to this folder and open it. So we have different numbers this time, right? So have you understood this part of the program, all of you? If yes, you can give me a raised hand. Thank you. Yeah, good. Now the second part, okay? So Nimisha will help me in writing the second part. That is, we need to read from this file, okay, random.txt, read from this file and count the number of even and odd, numbers. Yes. Nimisha, you can answer. सर पहले हम ये फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे ठीक है, मैंने कर दी है. I've done it for you. Yeah. Then and for Yeah. I in F. Very good. So for I in F, I'm going to read the entire file. Then if int of I. Okay. So if int of I %2 equal to 0. Okay, you want to suggest something like this. Okay. सर पहले हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उसके बाद अगर ये इवन होगा तो काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे. काउंट में कि अलग दो वेरिएबल चाहिए, इवन और ऑड? दो वेरिएबल चाहिए, एक इवन के लिए ठीक है, और एक मैंने ऑड के लिए. स्क्रीन पे देखिए, मैंने ले लिए हैं. ठीक है, अब बताइए क्या लिखूं यहाँ पर? अब इवन में इंक्रीमेंट कर देंगे, इवन प्लस इक्वल टू 1. ठीक है. एल्स ऑड प्लस इक्वल टू 1. ओके, अब क्या करें, प्रिंट कर दें? यस सर. Will it run? Let's see. You can write something like count of even numbers is. I can write here EV. And I can just copy it and write here count of odd numbers is OD. Okay. निमिषा रन कर रहा हूँ. You to suggest कि ठीक है. कॉमा लगा लो. कोमा आपने आएगा सर. you didn't raise a hand. That was the protocol. आपको अगर बोलना है, don't be too eager. Just raise your hand. I'll see it. ठीक है, इंदर बोलिए. सर वो बस कोमा आना था. अब चल जाएगा इंदर, आप गारंटी लेते हो इसकी? चलो हम पहले ऐसा करते हैं, अभी ऑब्वियसली ये वाला पार्ट को जरा वो कर देते हैं. ठीक है, इसको हटा देते हैं. ये तो हमने चलता देख ही लिया. ठीक है, then we go to just to check whether everything is fine about our output. Let me go to Python 3.9 and check what is the values. We have got 1, 2 even and 3 odd right now. Okay, 2 even and 3 odd. Let's see whether our program tells us the same. 2 even and 3 odd. Right? Yes sir. So I think this one program all of you have participated and you have made it. This is how program should be made. You cannot memorize programs. Okay, I hope you understood this program. अब नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं. आई वांट योर कोऑपरेशन इन द सेम वे. अनमोल ठाकुर, अब जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मेरे से बात कीजिए. आर यू देयर? यस सर. ओके, अनमोल, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. आपकी अनमोल समझ आ रहा है क्लास में? अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं की थी पहले, तो अभी जो नेक्स्ट थर्ड असाइनमेंट आप जरूर सबमिट कीजिए. सेकंड आपकी आ गई है. ओके, सम पीपल हैव नॉट सबमिटेड सेकंड असाइनमेंट आल्सो, बट I can't help it. I've uploaded the marks now. तो थर्ड असाइनमेंट का मैसेज आज डालूंगा, वो आप जरूर मतलब उसको टाइम पे सबमिट कर देना. ठीक है, ताकि लाइक अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बेस्ट चांस है कि आप अच्छे ग्रेड्स लें और क्लियर करें. कोई बच्चा रह ना जाए लैब में या थ्योरी में. दैट इज माय कंसर्न. ओके ओके अनमोल, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. राइट द नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ. ठीक है, we'll be discussing with a different set of students now. Let's pick up this second program now. Okay, to read from a file. So we have a file grades.txt. Okay, there is a file grades.txt and it contains some data about student marks. We have to display the total marks and percentage of marks for each student. Okay, I'll show you the grades file first. Okay, grades file. Yeah, here is. Can you see the grades.txt file here on screen? I'm opening it.
See, it says first line is how many students are there. Okay. The next 5 lines display the marks obtained by student in 5 subjects. Okay. So you need to display the total and percentage of each student. That's it. That's what you want to do. Okay. Understood? So suggest now what to do. I'll just close this all. Yes. So अब अपने आप ही participate कीजिए. Just raise your hands. आप सब unmuted हैं. But I want different students. I won't be asking same students. Okay, Angad, you can start. First, tell me, Angad, करना कैसे है इसको? Method क्या है? सर सबसे पहले इसको फाइल को ओपन करेंगे और जो फर्स्ट लाइन है उसको रीड करेंगे इंटीजर फॉर्म में कि हमें पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. Thank you, Angad. That's a correct thing. ठीक है. अब अनमोल चावला, आप बहुत क्वाइट हैं, क्या बात है? यस सर. सब ठीक है ना? यस सर. तो आप आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? चलिए बताइए, पहली लाइन बताइए क्या लिखी. F इज इक्वल टू, ओपन कर लें फाइल को. यस सर. ठीक है, ये कर लिया. grades.txt कॉमा क्या करना है, रीड करना है. फाइल एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, आगे बताइए. जो अंगद ने बोला कि फाइल की जो पहली लाइन है दैट इज कि कितने स्टूडेंट हैं. ठीक है, आई विल शो यू द फाइल वंस अगेन, ताकि आपको जल्दबाजी में अपने प्रोग्राम को याद ना करो आप लोग. ठीक है, सो फाइल की पहली लाइन देखिए आप लोग. ये फाइल है. ठीक है, इसमें पहली लाइन है दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. उसके बाद हर एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं और आपको हर एक बच्चे के मार्क्स और परसेंटेज बतानी है. ठीक है, पहली लाइन के लिए हम एफ ऑब्जेक्ट का 0 ले लेंगे. इन ऐसे ले लें. n इज इक्वल टू, ये ठीक रहेगा? बताइए. अब ये बताइए, ठीक है अनमोल? एफ डॉट रीड लाइन सर, ये अगर इंटीजर ना उठाए तो आपने बताना है. अगर थोड़ा कुछ होता है, इंटीजर उठाएगा कि नहीं, आप बताओ. ये क्या उठाएगा? जब भी रीड करते हैं तो स्ट्रिंग उठाता है. ठीक है, तो इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया. चलो ठीक है, थैंक यू. चलिए आगे चलते हैं. नितिका कैन आंसर नाउ. अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं नितिका, आप आंसर कीजिए. और भी जो बच्चे हैं वो करना चाहते हैं तो जरूर आंसर कीजिए. नितिका, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं. ओके, चलिए. नितिका के पास जो नेटवर्क की जो इक्विपमेंट है वो ठीक नहीं है या नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है. ठीक है, ओके. चलिए अब हम दीपेश से पूछ लेते हैं. यस दीपेश. यस सर. यस दीपेश, टेल मी व्हाट नेक्स्ट. दीपेश ट्राई कीजिए, अब क्या करना है आगे, व्हाट नेक्स्ट. So we open file, then we read. We have read the first line of the file to pick up how many students are there, and we have stored it in n. So since we are to process data for n students, so we need to go in a loop. That's as easy as that. So for I in range n, something like this. Okay. I in range n. Then what do we do now? Once we have used f dot read line, the cursor has moved to the next line in the file. Okay, so when this line is executed, see on screen all of you, when this line is executed, then the cursor has moved to, I'll point it out on screen. I'm going slow so that you understand. The cursor is now here. Once the read line method is executed, the cursor moved to the next line. So now we are having the marks of these students. First student, 5 marks, 5 subject marks, right? What to do next, Dipesh? We can split it. Okay, we learned the split method, so we can take, say, a list as gr is equal to f dot read line dot split. Okay, read line is a method, so we need to go like this. What will happen with this, Dipesh? So with read lines, we go line to line. It will create a list. It will create a list. I'll show you this much part of the program. Okay. So print gr. Okay. Right. इतना part देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं. Right. Print gr. Everything fine with this code? कुछ गलती तो नहीं है? देख लीजिए.
क्या प्रिंट होगा? चलिए तमन्ना आप बताइए, इतना कोड रन करें तो क्या प्रिंट होगा? तमन्ना, तमन्ना, not to mute, unmute yourself without my permission. Yes तमन्ना, आप बताइए। सर प्रिंट जीआर किया सर, सर ये प्रिंट नहीं कर पाएगा लिस्ट के फॉर्म में। नहीं कर पाएगा? नो सर। क्यों? सर बिकॉज हम उसमें मेथड यूज कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, ऐसे f.readline.split। आपने बताना, हमने कल पढ़ा था, कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो पता नहीं है। मैं आपसे वही चीजें पूछता हूँ जो मुझे नहीं पता है। आप बताइए ये क्या करेगा स्प्लिट? आप देख सकते हैं कि ये जो रीड लाइन कर रहा है ये लाइन है, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्पेसेस, तो ये इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। मेरे को तो यही लगता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो 5 लाइन है इसमें से कौन सी लाइन प्रिंट करेगा? 40 वाली, 22 वाली, 44 वाली, 88 वाली या 99 वाली? लास्ट लाइन प्रिंट करेगा अकेली। अच्छा चलिए देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? आपका दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए कि प्रिंट कर सकता है कि नहीं, स्प्लिट कर सकता है कि नहीं। और लास्ट क्यों हुई? बिकॉज मैंने ये लूप चलने दिया 5 टाइम्स, तो जब उसने लास्ट लाइन जो रीड की तो वो यहाँ आ रही है। तो जस्ट टू शो यू कि हाउ इट वर्क्स आई यूज दिस प्रिंट हियर। चलिए इतना आपको समझ में आ गया? ओके, अब कौन आगे बताएगा? देखते हैं, लेट्स सी। अर्पित पुंज, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए। अभी नहीं, वेट। अर्पित पुंज, यू नीड टू स्पीक। जो बच्चे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो एब्सेंट हैं, सो आई डोंट माइंड अगर आप चुप भी हैं तो यू नीड टू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। यस अर्पित। अर्पित अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्या हो गया? स्टूडेंट्स मेरे क्लास के जो हैं उनको टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी आती, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। They can't work with technology. They always have a data issue, a network issue, even after 1 year of using it, you see. Okay, Geetika. Am I audible, sir? Yeah, you're audible, but you've taken a lot of time. We don't have that much time in a class. Yeah, go ahead. What needs to be written here? Geetika, आप बताइए आगे क्या करना है? So print कर देते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट कौन सा है? ओके, सो आई हमारा वो चल रहा है तो उसको i+1 कर लेते हैं, ताकि क्योंकि i 0 से शुरू होगा, i+1 कर लेते हैं। ठीक है, और उसके आगे इसी को सेम लाइन में रखने के लिए उसके मार्क्स। गीतिका आप आएंगे? एंड देन वी कैन प्रिंट GR। कितना लिख के देख लेते हैं हम लोग तो पता चल जाएगा क्या करना है। यस गीतिका, आर यू देयर? यस सर। यस गीतिका, बताइए बेटा। इसको चलाएंगे तो देखिए 500 बच्चों के मार्क्स डिस्प्ले हो जाता है कि नहीं, देखिए। ठीक है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, सी इट्स सिंपल। आप स्टेप पे स्टेप करते जाइए, यू कैन राइट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। सो हमने वो फाइल से रीड करके और उसको डिस्प्ले कर दिया एज अ लिस्ट। अब सेकेंड पार्ट है कि वी नीड टू फाइंड दी सम एंड परसेंटेज फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। बताइए गीतिका कैसे करेंगे इसको? सर हम सम करेंगे हर एक स्टूडेंट ठीक के है, मार्क्स का। हर एक तो यहाँ s = 0 लिख लिया। आगे बताइए। इसको भी मैं हैश कर देता हूँ, इसको अभी नहीं, चलिए ठीक है, चलिए। यस, इट शुड बी इजी फॉर यू। आपको क्या करना है कि जो आपने हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है, जैसे अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, पहले i in range n है ना, तो वो 0 से n-1 तक चलेगा। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। सो GR में पहली लाइन आ जाएगी आपको जो दिख रही है बैकग्राउंड में, 40, 55 वाली। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको पूरी लाइन नजर आ जाए। तो बंद करता हूँ। Now you can see the full line. So when I read this, when this loop works for the first time, GR में कौन सी वैल्यू आ जाती है बताइए? GR में आ जाती है 40, 55, 67, 89, राइट? सो अब आपको एक लूप चलाना है उस लाइन को प्रोसेस करने के लिए। तो बताइए गीतिका वो लूप कितनी बारी चलना चाहिए? यस गीतिका। सर हर स्टूडेंट के मार्क्स को प्रोसेस करना है। आप समझ नहीं रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। आई एक्सपेक्ट अ गुड आंसर फ्रॉम यू। हर सुई तो सिंपल है। आपका ये लूप चला, रीड लाइन ने ये वाली लाइन पढ़ी 40, 55, उसको GR लिस्ट में स्टोर कर दिया। आपको इस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का सम करना है।
तो वो एक लूप कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में? 5 है। तो आपको मालूम नहीं कितनी बारी लूप चलाना है, तो इजी है। पीपल कैन रेज हैंड्स, ठीक है। मनप्रीत कैन आंसर। ऊंचा बोलिए। हाँ मनप्रीत, आपको भी टाइम लग रहा है, ठीक है। निमिषा बताइए, यू रेज्ड हैंड। निमिषा, यस। Okay, not audible, not audible. Pritpal, you can write. No, Nimisha, just wait. Yes, Pritpal, you can सर answer. हम GR इधर मतलब GR तक चलाएंगे, मतलब GR में ही चला देंगे। वो लिखेंगे कैसे Pritpal? बात तो ठीक की आपने, जितने एलिमेंट GR तक में चलाएंगे। फॉर J in GR और सम में हम उसको J को प्लस कर देंगे। Oh, is it that easy? J क्या है? J ऐसा नहीं होता। GR जो है ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। You need to specify कि ये लूप कितनी बारी चलना है, ठीक है। ओके इंदर, आपने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को मेरे से पूछे बिना। हाँ अब बोलो इंदर, क्या बोलना है, बोलो। सर लेंथ ऑफ GR। ठीक है, ये चल जाएगा। यस सर। तमन्ना बताइए। देखो जब आप इन लिखते हो ना तो आपको एक रेंज देनी होती है, ठीक है। ओके आपने जो बोला इंदर, उससे हो जाएगा। यस सर, रेंज ऑफ रेंज। तो आप लोग सोचते क्यों नहीं? सर यही बोलना था मैंने। नहीं बट आपने ये बोला नहीं, यू डिडंट स्पीक दिस। या तमन्ना वांट्स टू से समथिंग। सर रेंज में एक प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके पीछे तक चलेगा लूप में। आप बताओ इसको चलाओ। GR की लेंथ कितनी आई बोलो? 5। yes, वापस रेंज को आपको समझाना पड़ेगा। रेंज 5 का मतलब होता है 0 से 4। 0 से 4, यस सर। 0 से 4 ही इंडेक्स है। क्या प्रॉब्लम है? यस सर, ठीक है सर। बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को थोड़ी छोटी चीजें समझने के लिए। सर एक्सक्यूज मी सर, हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे GR इज इक्वल्स टू सर ऊपर देखो जो GR कर सकते हैं जो भी आप लोग सजेस्ट करते हैं, या तो करके बताइए, स्क्रीन शेयर करके साथ में प्रोग्राम लिखिए। इतना लंबा डिस्कशन नहीं हम कर सकते कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट? फाइन। सो हमने क्या किया, J इन रेंज दिस और GR J हमने ऐड कर दिया सम में। सो अब देखिए J 0 से 4 तक चलेगा, सम के अंदर GR0, GR1, GR2, GR3, GR4 ऐड हो जाएगा। दैट इज 40, 55, 67, ठीक है। और बस ये सम कर लिया आपने। इस लूप के बाहर आप अपना प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट I expected a better response from all of you regarding this, but I'm surprised कि आप लोगों ने बहुत टाइम लगाया है, ठीक है। सम इज S, ओके। और यहाँ आप लिख सकते हैं परसेंटेज इज, ओके। 5 सब्जेक्ट्स हैं, सो परसेंटेज हो जाएगी S/5। तो ये चल पड़ेगा, कोई एरर तो नहीं है? आप बच्चे थोड़े हमारे बताएंगे हमें। चल पड़ेगा जी, बताइए। आप लोगों ने लिखवाया मुझे ग्रेड फाइल से रीड करके। यस सर, चलेगा? यस सर। यस सर। ओके लेट्स डिस्कस दिस। उन बच्चों के लिए जो थोड़ा स्लो समझते हैं, हमने ग्रेड फाइल से, जो कि यहाँ दिख रही है आपको, उसकी पहली लाइन है कितने बच्चे हैं, उसके बाद 5 बच्चों का डेटा है यहाँ पर, ठीक है। और हमने क्या किया कि पहली लाइन रीड कर ली, ठीक है। तो n के अंदर वैल्यू क्या चली गई? 5। जब पहली लाइन रीड की तो कर्सर जो है वो यहाँ पर आ गया सेकेंड लाइन पे, ठीक है। फिर हमने ये लूप चला दिया 5 बारी, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 5 का मतलब होता है 0 से लेके 4 तक। सो GR इज इक्वल टू, जब ये किया तो GR के अंदर ये लिस्ट चलेगी। ये लिस्ट मतलब ये वैल्यूज लिस्ट GR में स्टोर हो गई। आपने प्रिंट कर लिया, उसने बोला स्टूडेंट 1 और ये लिस्ट उसके आगे प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर सम 0 किया, J चला जितनी GR की लेंथ है, राइट। सो वो लेंथ है 5, सो ये रेंज 5 का मतलब 0 से 4। सो S के अंदर GR0, GR1, 2, 3, 4 सब ऐड हो गए, आपने उसको प्रिंट कर दिया और परसेंटेज निकाल ली, ओके। तो देखिए ये कुछ मानता है कि नहीं हमारी बात? गुड प्रोग्राम आई सपोज। तो इसी तरह से लाइक फाइल हैंडलिंग भी है, लूप भी है, आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। रेंज भी है, लिस्ट भी है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मस्ट वर्क विद प्रोग्राम्स। अंगद, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। सर अगर GR एक लिस्ट है तो हम सिंपली इसमें ये नहीं कर सकते थे फॉर J इन GR?
और जो जे को इंट में कास्ट करके और डायरेक्टली वो कर सकते थे। आप Yes, बताइए, sir. कर लेते फॉर जे इन जी आर कर दिया, चलिए यस सर मैंने वैसे किया था, सॉरी सर Yes, sir, कनेक्शन वैसे भी हो जाएगा। ठीक है और ठीक। अब क्या लिखें? जे लिख सर दें सिर्फ जे को शुरू करेंगे इंटीजर। हाँ अच्छा सर जी आर जे कट करके सिर्फ ऐसे कर दें? यस यस सर ऐसे किया। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है कि आप सब लोग मोस्ट ऑफ यू आर हैबिचुअल ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोग्रामिंग, स्लो, है ना? इंडेक्स को समझते हैं, आपकी इंडेक्स कैसे ऐड करना है। वंस यू आर गुड इन दैट यू कैन यूज दिस आल्सो। लेट्स सी वेदर दिस गिव्स द सेम रिजल्ट। फाइन, ठीक है जी। सेटिस्फाइड अंगद एंड मनप्रीत? यस सर। ओके, तो मनप्रीत जब आपने आंसर दे रहे थे तो आपको आंसर देना चाहिए था। यू जस्ट स्टॉप व्हाइल आंसरिंग। यू आई डिडंट स्टॉप यू, आप खुद ही रुक गए। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी। ओके, मैंने फिर से रीजॉइन क्लास से पहले आप रेडी क्यों नहीं रहते? बैटरी, पावर, नेट, कभी कभार हो सकता है कि देयर इज अ सर मैंने फेलियर प्लग इन इन नेटवर्क। किया था पर स्विच नहीं ऑन था। Very good. So you are careless, we can say, right? Okay. No, sir, If we have understood this program, which is a very good program, because we are reading from an existing file, it's similar to your data set, isn't it? अब data set में भी तो यही करेंगे। वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो 5 वैल्यूज है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और वहां पर वो कुछ डिफरेंट चीजें होंगी। ठीक है। So if you have understood this program, you can raise hand, all of you, so that I can move to the next one. चलिए थर्ड। अब तो आसान, आपको कुछ कुछ फाइल हैंडलिंग समझ में आ गई मेरे को लगता है। तो पढ़िए नेक्स्ट प्रोग्राम। टू रीड लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट लाइन। ठीक है जी, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए सब, थैंक यू। टू रीड लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट लाइन। कौन बताएगा इसको कैसे करना है? हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, जिस लाइन की लेंथ सबसे लंबी है उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, फाइल देखें, लेट्स सी द फाइल। मैंने फाइल्स पहले ही बना ली थी कि हमें द फाइल नेम इज क्या नाम है, ये देखिए abc.txt। देखिए, पसंद आई आपको फाइल? हेलो, हाउ आर यू डूइंग, होप ऑल वेल एट योर एंड, फोर्थ सीएसई इज द बेस्ट क्लास इन सीएसई डिपार्टमेंट। ये गलत है कि ठीक है? आप बोल सकते हैं सब, कोई बात नहीं। यू लाइक दिस लाइन, फोर्थ सीएसई 1 इज द बेस्ट क्लास इन सीएसई डिपार्टमेंट? बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बोलिए। सही है सर, सही है, ठीक। सही है, चलो। और आपने प्रूव करना है इसको फिर अपने रिजल्ट्स और प्लेसमेंट्स के साथ, ठीक है? चलो गुड। अब बताइए इसको करना कैसे है। ये हमारी फाइल है, हर एक लाइन पढ़ेंगे, जो लाइन सबसे लंबी है वो बताएंगे एंड में कि ये लाइन जो है वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, मेथोडोलॉजी बताइए सर। अभी नहीं, अभी मैंने आपको बोला नहीं। you're too keen to answer always। चार्ट बताइए बेटा, आप कैसे करेंगे इसको? हर्षप्रीत आप बताइए। हर्षप्रीत अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है मेरे ख्याल से। हर्षप्रीत आंसर कीजिए। सर हाँ जी, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है ना? सर नहीं, मैंने पहले भी की थी, नेटवर्क पहले भी की थी तो क्या हुआ था? सर वो नेटवर्क इशू के कारण बना। आप पिछली जो थ्योरी क्लास थी उसमें भी एब्सेंट थे, ठीक है? आपने उसमें 15-20 मिनट की क्लास लगाई थी, मैंने आपको एब्सेंट कर दिया था, ठीक है? आज भी आपकी, आज की भी अगर 85% से कम टाइम हो तो मैं एब्सेंट कर दूंगा। तो बेशक अगर आपने क्लास नहीं लगानी तो आप छोड़ भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लैब में आप लोग तभी पास होगे जब हर बच्चा काम करके दिखाएगा, ये मेरी गारंटी ले लो, पहले मैं बोल रहा हूँ। ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क, नहीं तो मैं फेल कर दूंगा। ऑनलाइन में मैंने को प्रसाद नहीं बांटना आपको कि आपने पास होना ही होना है, ठीक है? यू मस्ट प्रूव एंड आई डिस्कस इट टुडे कि कैसे आपने करना है। दिस इज द लास्ट प्रोग्राम दैट वी डिस्कस टुडे, देन आई डिस्कस लैब पार्ट बी विद यू। और ध्यान से सुन लेना सारे, ठीक है? चलिए अर्षित बताइए कैसे लिखना है प्रोग्राम। प्रोग्राम पढ़ लिया ना आपने? दोबारा पढ़ लीजिए। थर्ड प्रोग्राम है टू रीड लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट लाइन।
नहीं आएगा तो कैसे पास कैसे होगे लैब में आप? बताओ, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लैब सेशन में पूछूंगा आपसे, फिर आ जाना चाहिए आपको, ठीक है बेटा? ओके गुरकीरत 156 बोलिए बेटा, कैसे करना है इसको? 156 गुरकीरत। हेलो हेलो, यस गुरकीरत, गुड आफ्टरनून सर। आपकी आवाज कम है, थोड़ा ऊंचा बोलिए या थोड़ा वॉल्यूम देखिए अपना। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बोलिए, कैसे करना है इसको? वी नीड टू रीड फ्रॉम अ फाइल। फाइल मैंने आपको दिखा दी है, फाइल देख ली ना आपने? ये फाइल है, अच्छा आपको बताता हूँ कौन सी फाइल। फाइल को क्या देखना है, उसमें 4 लाइंस हैं, उन लाइंस को रीड करके बताना है कि कौन सी लाइन सबसे बड़ी है। फिर फाइल को देखने की जरूरत है। आप स्टेप्स बताइए, एक एक स्टेप बताइए, अपने आप प्रोग्राम बन जाएगा। हमें प्रोग्राम आता है, याद थोड़ा होता है कोई, ठीक है? आप सिर्फ स्टेप्स बताइए क्या करना है, एक एक स्टेप करके कर लेंगे हम पहले सर फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। यस बिल्कुल ठीक है, पहले हम फाइल को ओपन कर लेंगे। वी गो इन अ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, हमें कंप्लीट प्रोग्राम देखते थोड़ा आ जाता है, तो उससे रीड करना है। चलिए आगे बोलिए सर। उसके बाद हम सर फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे, उसके कितने कैरेक्टर्स है उसमें। वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट को ही रीड करेंगे, दूसरी थर्ड तीसरी चौथी को नहीं करना। सर हम पहले फर्स्ट को रीड करेंगे, फिर हम उसको सेकंड को रीड करके दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ओके, कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। ओके फाइन, जहाँ तक मुझे ठीक है ठीक है। थोड़ा सा लंबा आपने बता दिया, पर हम देखते हैं कोई शॉर्टकट मिले हमें तो। जशनप्रीत सिंह 167 अनम्यूट कीजिए। यस सर। जशन बताइए कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक फाइल है, उसमें 4 लाइनें हैं, 4 10 12 जितनी मर्जी हो, बताना कि कौन सी लाइन सबसे लंबी है। तो पहले फाइल ओपन करेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे। नेम ओपन तो लिख दिया, नेम भी लिख दिया बेटा। अब बताओ, फाइल ओपन होगी रीड करने के लिए, कर्सर जो है फाइल में पहली लाइन पे है, क्या करूँ बताओ? तो सर आपने पिछली बारी जो सेशनल 1 हुआ था उसमें तो सब बच्चों ने इतने मुश्किल मुश्किल प्रोग्राम लिख दिए थे, ये तो आसान प्रोग्राम है, खुद ही लिखे थे ना सबने। अगर सबने प्रोग्राम खुद ही लिखे थे तो रेज योर हैंड्स। अगर आपने पिछले सेशनल में सारे प्रोग्राम खुद ही लिखे थे तो जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है चलो, ठीक है, आई नो कि बहुत सारे बच्चों ने कॉपी किया था, आई नो दैट। ठीक है कबीर, आप बताइए बेटा, आपसे बात नहीं हुई काफी दिन हो गए। यस कबीर, हाउ टू गो अहेड इन दिस प्रॉब्लम? सर फाइल आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कोड, ओके? मैं पूछूं कैसे करोगे आप इसको? सर इसमें हमने रीड करनी है, तो सर जब हम रीड करेंगे तो उसकी लेंथ फाइंड करके स्टोर कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट लाइन की फिर से लेंथ फाइंड कर लेंगे। अगर तो नेक्स्ट लाइन की बड़ी है तो सर उसको स्वैप कर देंगे। और ठीक है ठीक है, सो आई थिंक दैट्स राइट। मनिंदर आपने हाथ खड़ा किया था, आप भी बोल सकते हैं बेटा, बताइए। यस सर, सेम था। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ठीक है, या वी टेक long as a blank line, okay? That means long जो है एक वेरिएबल है, उसकी लेंथ अभी 0 एज्यूम कर रहे हैं स्ट्रिंग की शेप में, ठीक है? और फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं c = 0 लेंथ काउंट करने के लिए, ठीक है? और फिर फाइल में से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इजी होता है for I in f, ठीक है? और ये हमारी कौन सी लाइन है? पहली लाइन है, इसको इंक्रीज कर दो, c + = 1, ठीक है? तो C इज इंडिकेटिंग हम कौन सी लाइन को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप प्रिंट कर दो यहाँ पर कि कौन सी लाइन है, ठीक है? प्रिंट लाइन नंबर, ओके? और यहाँ लिख दो आप C, ठीक है? उसके बाद आप I को प्रिंट कर दो। आपने I लिखा है ना फॉर I in F, तो I में पहली लाइन है, आपने लिख दिया लाइन नंबर 1, और लाइन जो है उसको आपने डिस्प्ले भी कर दिया, ठीक है? और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं बताइए, वो कैसे करें? प्रिंट, we can write something like characters are, okay? And then we can write I think this will work, okay? चल जाएगा ये, इतना चला के देखें, कंपैरिजन बाद में कर लेंगे। कॉमा रह गया फिर से, है ना? ओके, देख लीजिए मैंने क्या किया है। आई ओपनड अ फाइल फॉर रीडिंग, एक
अभी कंपैरिजन तो कुछ किया नहीं, एक काउंट कर लिया कि कौन सी लाइन हम पढ़ रहे हैं और उसमें उसका कंटेंट क्या है और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इतना पहले चला लें। आप बताइए कुछ, अंगद चलेगा, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अंगद ने हाथ खड़ा किया है, अंगद बताइए, विल इट वर्क? सर चल तो जाएगा, पर मेरा जो प्रोग्राम है थोड़ा सिंपलर है तो सिंपलर सिंपलर पता कब होता है? व्हेन यू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। तो हमारी पूरी क्लास जो है वो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ गुड होगी। तो वो जो आपका प्रोग्राम, आप सब नोट करते रहिए, जैसे मनप्रीत ने सजेस्ट कर दिया, इंदर ने, आप भी सजेस्ट कर दीजिएगा, टाइम होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट लैब सेशन में देख लेंगे क्या आपकी अप्रोच है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, मैं इतना रन करता हूँ, देखिए ये फाइल से पढ़ पाता है कि नहीं। ठीक है, लाइन 1 में हेलो लिखा है, लाइन 2 में हाउ आर यू डूइंग, लाइन 3 में इस तरह से ये लिखा हुआ है सब। ओके, अब आपने क्या करना है, आपका तो काम था कि आपको वो ढूंढनी है लॉन्गेस्ट लाइन, है ना? तो क्या कर सकते हैं बताइए आप? अब यहां लिखिए इफ लेन ऑफ आई, जो आपकी करंट लाइन है। ठीक है, जब ये लूप शुरू होगा तो एक एक लाइन ही चलेगी ना। इफ लेन ऑफ आई इज ग्रेटर देन लेन ऑफ लॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब जो आई वाली लाइन है वो बड़ी है। ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, लॉन्ग इक्वल टू आई। ठीक है, दैट्स इट आई थिंक। उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं, कि नहीं? क्या प्रिंट करूं अब? यहाँ प्रिंट कर दीजिए फाइनल लाइन जो आपकी, प्रिंट लॉन्ग। यस यस, वी कैन प्रिंट, क्या लिखूं? लॉन्ग प्रिंट कर लूं, चलेगा? यस सर। देख लो कुछ हमने गलती तो नहीं की। ठीक है, ओके, चला के देखते हैं। लॉन्ग, then some message I suppose is the longest line with characters के लिए आप उसकी लेंथ ले लो। ऐसे लिखो आप, ठीक है? Then you can write something like this। ठीक है, ये चलेगा? बता दीजिए आप लोग, आप जल्दी बता देते हैं, जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। चलिए रन कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, इस लूप के अंदर, ये लूप जो है फॉर वाला, इसमें हर एक लाइन डिस्प्ले होगी, लाइन नंबर कौन सी है, लाइन का कंटेंट क्या है, उसमें कितने कैरेक्टर हैं, और इस कंपैरिजन ये हर लाइन के लिए होता रहेगा। अल्टीमेटली लॉन्ग के अंदर वो लाइन स्टोर होगी जो लॉन्गेस्ट थी। ठीक है, तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको समझ में आ गया प्रोग्राम। ठीक है, 4th CSE1 is the best class in CSE department, is the longest line with 44 characters। ठीक है जी, फाइन। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो आप खुद ट्राई कर लीजिए, उसको नेक्स्ट लैब सेशन में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर योर लैब पार्ट बी, देन आई विल सजेस्ट समथिंग। देखिए, अगर तो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे तो मुझे पता चल जाएगा जब मैं वाइवा लूंगा। जब मैंने आपका एक्सटर्नल वाइवा लेना है, मुझे एक एक बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, चाहे आप घर बैठ के स्क्रीन से जो मर्जी बोली जाओ। आई विल अंडरस्टैंड व्हाट वर्क यू हैव डन इन योर ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द ग्रुप्स विद यू। आपको उसी ग्रुप में ही काम करना है, आपस में कॉन्टैक्ट आपकी हेडेक है, मेरी नहीं है। अगर कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपने मैनेज करनी है। पीपल आस्क मी सर मैंने तो उनसे कॉन्टैक्ट किया, उसने मुझे बताया ही नहीं, समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स पिक अप फर्स्ट ग्रुप। P1 ग्रुप में कौन कौन है? आई थिंक आशा है, अभिषेक है। अब चारों आएंगे एक मिनट ऑनलाइन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आशा, अभिषेक, कौन सा एक जो बच्चे ग्रुप में है ना P1 ग्रुप में, वो अपना हाथ खड़ा कर दे। दे कैन रेज हैंड्स, दोज हु आर इन ग्रुप 1 P1। ग्रुप्स पता है क्या दिखाऊं आपको? अभिषेक, आपके साथ कौन कौन है? सर अबे चुप तो है ही नहीं आज, कहाँ पर है वो? बस अबे चुप ही है आप, और अबे चुप हो बस। यस सर। क्योंकि अभिजीत और अमित तो है नहीं जीवन में, तो हम दोनों ही हैं।
नहीं G1 आपका है तो ये आशा, अच्छा ये दूसरे ग्रुप में होंगे। ओके ये G2 में है सर, ओके 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 G2। फाइन यस फाइन सर। गॉट इट। तो अब बताइए आपने क्या किया अभिषेक। ऑल ऑफ यू शुड लिसन वेरी केयरफुली टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके आई टेल यू हाउ टू डू लैब पार्ट बी एंड इवन आफ्टर माय टेलिंग, अगर आप नहीं करते हो, लिसन लिसन वेट, even if you don't do it after my discussion with you, I'll be discussing this thing with you in your normal lab sessions. I'll have extra lab sessions also. उसके बाद अगर मुझे लगता है कि आपने काम नहीं किया तो मैं आपको एक्सटर्नल में फेल कर दूंगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आपने काम करके ही पास होना है और उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपका ग्रुप आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, हर ग्रुप के साथ, बट यू मस्ट वर्क। ठीक है अभिषेक बोलिए बेटा। सर मैंने वो थोड़ा पार्ट बी का ऑप्शनल जो है सर, वो एप्लीकेशन पार्ट सर, मैंने उसमें पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करके सम इंटरफेस सर बनाने कैसे का ट्राई कनेक्ट किया आपने, कहाँ से देखा आपने? सर आपकी वीडियोस आपने देखी है वीडियोस, ठीक है। सो अभिषेक ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, पाइथन की कनेक्टिविटी के वीडियोस और उसमें बेसिक ऑपरेशंस डेटाबेस के मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, ठीक है। It is in a, you just write Python Oracle connectivity on my channel, okay? You will get all of that. That is one part of your lab part B. Second, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपके सीनियर्स ने लास्ट टाइम काम किया था इन माय बिग डेटा लैब, ओके? अभिषेक म्यूट कर लीजिए अपने आप को, फाइन। मैं आपको दिखा रहा हूँ अब कि किस तरह से बच्चों ने काम करके प्रेजेंट किया था। ऑल ऑफ देम डिड अ ग्रेट जॉब, यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ देम, ओके? सो लेट्स पिक अप 5 CSE1, आप भी वही 5 CSE1 ही बनोगे ना। ये उनकी सारी सबमिशंस हैं। सी हाउ आई हैव अरेंज्ड, हाउ मच टाइम आई हैव टेकन टू प्रिजर्व दिस थिंग दैट दे हैव सबमिटेड। सी ये उनके डेटा सेट्स हैं ग्रुप वाइज, यू कैन सी ईच ग्रुप, कई ग्रुप्स के दो डेटा सेट भी होंगे, ठीक है। ये उनके डेटा सेट्स हैं मेरे पास, ये उनके वीडियोस हैं जो उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने अपने, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो, हर ग्रुप ने एक वीडियो बना के दी है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर हम ये फर्स्ट ग्रुप की रिपोर्ट देखें तो इट लुक्स लाइक दिस, ओके, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। देखिए इंडेक्स बनाया, डिस्क्रिप्शन अबाउट डेटा सेट, जैसे मैंने आपको बोला था। तो अब देखिए उन्होंने, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप ने कौन सा डेटा सेट लिया, देखें, देखो इन्होंने ये डेटा सेट लिया केस स्टडी ऑन नेटफ्लिक्स डेटाबेस, ठीक है। एंड इन्होंने इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, फाइन, और बताया कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं और क्वेरीज उन्होंने किस पे सॉल्व की है। आपने पाइथन में करनी है अभी, ठीक है। इसको बंद करूं तो मैं ये डेटा सेट खोल के दिखाता हूं आपको। आई जस्ट शो देयर डेटा सेट टू यू कि वही नेटफ्लिक्स वाला ही है। ये देखिए ये डेटा सेट है, ठीक है। ऊपर हेडिंग देखिए, शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर कौन है, कास्ट क्या है, कंट्री कौन सी है, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके डेट एडेड, रिलीज ईयर कौन सा है, एवरीथिंग इज देयर, ओके। सो आपको भी इस तरह के डेटा सेट्स जो हैं उनको डाउनलोड करना है। ये नेट से मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये देखो कितने ग्रुप्स है, काउंट 18 ग्रुप है क्लास के, ठीक है। तो हर बच्चे ने डिफरेंट ग्रुप पे बनाया है, उसने रिपोर्ट दी है, डेटा सेट पे को दिया है। नॉमेनक्लेचर जैसे आप लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं, इन्होंने भी किया है, ठीक है। पर मैंने उसको प्रिजर्व करके रखा है ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन से बच्चे ने क्या काम किया सालों बाद भी। देखो P1, 5 CSE1, ये सब मैंने दिए हेडिंग्स। कुछ ग्रुप कर देते हैं, बाकी मैंने उनको कोशिश की है कि मैं इसको करूं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी डेटा सेट जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। नेक्स्ट लैब सेशन वो नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा, उससे पहले ही ले लूंगा मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको। उसमें हर एक ग्रुप ने अपना डेटा सेट मुझे दिखाना है, ठीक है। आप दिखाओगे, मैं मार्क्स उसके ऐड कर लूंगा वहां पर, ठीक है। एंड पूरे ग्रुप्स के कर लूंगा मैं, जितने भी ग्रुप्स होंगे। जो एब्सेंट है वो भी नोट कर लूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके मार्क्स जो है वो शक्ल देख के लग रहे हैं कि ये बच्चा बहुत रेगुलर है तो इसके मार्क्स ऐसे लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। यू मस्ट शो योर वर्क इन लैब पार्ट बी सो दैट आई कैन पुट मार्क्स फॉर यू। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। जितनी हेल्प मेरे से चाहिए आप मेरे से ले लीजिए, ठीक है। ग्रुप में आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर, आपको यू कैन नॉट डॉज मी। आपने अगर काम नहीं किया तो मुझे पता चल जाएगा, ये आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप मेरे को जानते हो अच्छी तरह से सर। ये सिंदर बोलिए बेटा। सर हम एक डेमो वीडियो देख सकते हैं सर की। डेमो वीडियो देखना है, मुझे Yes, साउंड sir. शेयर करनी पड़ेगी। लेट्स सी इफ वी कैन वर्क विद इट। जस्ट अ सेकंड ना, ओके। यस सर। डेमो वीडियो दिखा देते हैं।
Okay, let's go to trainings. Let's go to, चलिए 5 CSE 2 में देखते हैं कोई अच्छा ग्रुप है तो वीडियोस। ये ग्रुप देखें कौन सा है तो चेक करने दीजिए एक बारी जरा। आप लोगों ने लंच कर लिया कि नहीं सबने? अगर नहीं किया तो हाथ खड़े करो। मैंने अपना हाथ पहले ही खड़ा कर दिया, मैंने भी अभी लंच नहीं किया है, ठीक है? आई एग्री हम करेंगे 5 मिनट और बस, ठीक है? मेरे को देखने दीजिए कौन है ये। हाँ ये अच्छा वीडियो है। साउंड आपको आ रही है? नो नहीं आ सर। रही होगी, ठीक है। This data अब आ set रही है? contains 420 Yes, sir. rows and 14 columns. Sound is The various now it's columns audible to of all the of you? data set are Yes, sir. competition ID. This ठीक column है, contains the unique competition थोड़ा ID ऊंचा कर of देते हैं, each competition. Competition name. थोड़ा आगे कर दें ताकि आपको If yes, ये इस पे देखिए। इसमें वीडियो में खास बात ये है, मोस्ट वीडियोस में, that students have all the students of the group have participated in creating this video, and this was during the lockdown, and so no it's a further great changes effort could by be all the done students. even if required. The different codes which are present in the ये data set. अभी देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। Convert the इन्होंने first क्वेरीज को alphabet एक्चुअल of में रन भी evaluation करके metric दिखाया। ये तो component. टेक्सचुअल पार्ट है ना, ये देखिए ये क्लस्टर में क्वेरीज रन भी हो रही हैं। दिस इज द एक्चुअल क्वेरी व्हिच इज रनिंग इन द ग्रंट शेल। ओके, वो एक एक क्वेरी दिखाते हैं जो उन्होंने लिखी है और उसको रन करके बताते हैं। And also we have ranked them. So now we will dump. आपने भी नेक्स्ट सेमेस्टर ये पढ़ना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत काम की चीज है आपके लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? आई थिंक ऑल गुड अबाउट द वीडियो। बंद कर दें इसको अब? यस सर। इंदर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने वीडियो दिखा दिया। सो इफ यू फाउंड टुडेज लैब सेशन इंटरेस्टिंग तो यू कैन रेज योर हैंड। आप भी बोलोगे सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, okay, thank you then. I close this class here. Thank you very much. Excuse me, sir. Thank you, sir.